इस क्वेश्चन में दिया गया है कि आप कौन सी सिचुएशन में सरफेस एरिया और कौन सी सिचुएशन में वॉल्यूम, मतलब दोनों ही अलग अलग कंडीशन है। एक कंडीशन में आपको क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया, दूसरी में वॉल्यूम। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। टेल मी, होल्ड कहाँ है, मतलब क्या क्या आएगा यहाँ पर। Sir, we have to find volume. वेरी गुड, वॉल्यूम। नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। Sir, surface area. वेरी गुड, सरफेस एरिया, surface area. And last, to find the number of smaller tanks that can be filled with water from it. Sir, volume. Volume, very good, क्योंकि वहां पर देखो दिया गया है ना, filled with water. Water filling means space is there, we require. Okay, so this is very simple question. Now question number 2. So what it is given in question number 2? There are two different cylinders. It is given cylinder number A and cylinder B. This is A cylinder and this is B cylinder, right? So both having different dimensions. Diameter of this A, it is given 7 centimeter. Diameter of this, it is given 14 centimeter. Okay, height, here height it is given 14. Here height it is given 7 centimeter. So both having same volumes or different volume, we have to calculate that. And also we have to compare their surface area, right? So here in this question, there will be two parts. You can say cylinder A and cylinder B. So here in the cylinder A, diameter it is given, diameter 7 centimeter. So we can say radius 7/2 centimeter. In B part, diameter it is 14 centimeter. So radius we can say 14/2 centimeter. Okay. So what is the formula for volume of a cylinder? Pi r square h. Base area multiplied by height. Base area we know that it is a square. So pi r square into h. So here h it is given 14 centimeter. Huh? Here in this question, h means height it is given 14 centimeter. And in this question, height it is given 7 centimeter. Radius 7/2, 7/2 multiplied by height it is 40. 7 get cancelled. Here it is 11. 2 1s are 2, 2 7s are 40. So 11 multiplied by 49. 539 centimeter cube. Okay, 49 ones are 49. Again 4 carry. So how much it is? 539. 13? 39. Yes. 39. 50. Okay. Centimeter cube. Centimeter cube. Okay. And here, volume of this, pi r square h. Place the values. Height it is 7.
7 get cancelled. 2 ones are 2. Here it is 11 and here it is 7. By multiplying what is tell me आपको इसका वॉल्यूम 1078 सेंटीमीटर क्यूब। देखो वॉल्यूम अभी आपको कौन सा ग्रेटर मिल रहा है, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ बी सिलेंडर, विच इज ग्रेटर, कौन सा ग्रेटर है? B cylinder. यस ऑब्वियसली when we compare volume of both, we can say volume of B, it is greater than volume of A. Now we have to compare what? Surface area. Okay, total Surface area. total surface area. What is the formula? 2 pi r into bracket r plus h. R plus H. So total surface area of cylinder E, we can say formula 2 pi r h. This is the curved surface area, curved surface area, plus bottom and top surface area means 2 pi r square. Okay, so you can take common 2 pi r, you can take common, so r plus h or h plus r, same it is. Radius, it is how much? 7/2. 7/2. 7/2. Here it is 7/2 plus height 14, right? 14. By solving, you will get 385 308. 85 centimeter square. Total surface area of cylinder A, and that of B, total surface area of cylinder B. Same formula, 2 pi r into bracket r plus h. Here radius it is different. Radius it is 14 and height it is height how much? 7 height and 14 it is radius. Okay, right now? No, radius it is radius will be 7. 14/2 it is. Radius it is 14/2 and height it is 7. Okay. Here also when we solve, that time we will get total surface area 616 centimeter square. So tell me, which surface area of A or B it is greater? B1. B it is greater. Okay. Sorry. So we can say the cylinder B has greater volume and also surface area also. Understand? So very simple questions. Yes, sir. Third question. Find the height of cuboid. Find the height of cuboid where base area it is given 180 centimeter square. Now base area means length into width. Okay, base area means what? Rectangular area, right now? So base area it is given means length into width it is given 180, and volume it is given 900
सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ cuboid, what is the formula? Base area into height. This is the formula. We have volume 900 centimeter cube. 900 centimeter cube is equal to base area how much? 180, and height it is we don't know, so h. Therefore h is equal to 900 divided by 180. Okay, so here we can say 1s are 2, 5. Height it is 5 centimeter. Understand? Understand how to solve? Yes. तो क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। कहीं पर भी आपको लगता होगा ना कि ये अंडरस्टैंड नहीं हुआ है तो मुझे बताना, क्योंकि मैं सॉल्व तो कर रहा हूँ, तो रिस्पॉन्स आपका कम आ रहा है। अंडरस्टैंड हो रहा है क्या आपको? Yes, sir. सब कुछ डिपेंड फॉर्मूला के ऊपर है ना। जैसे मैंने आपको बताया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो उसका बेसिक फॉर्मूला ये बेस एरिया इनटू हाइट। जो भी बेस एरिया होता है और हाइट। Excuse me, sir. बोलो बेटा। सर ये फॉर्मूलाज याद नहीं हो रहे हैं। Sir, हाँ हाँ sir, तो can you explain कैसे? this हाँ, question once again? हाँ एक्सप्लेन करता हूँ ना। ये देखो क्यूबॉइड का आपको पता है क्यूबॉइड कैसे होता है। क्यूबॉइड में आपका जो बेस एरिया होता है, राइट। देखो दोनों फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूला जो है ना क्यूबॉइड की, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करके देता हूँ। पहले तो आपको क्यूबॉइड की फिगर निकाल के दिखाता हूँ। देखो ये क्यूबॉइड है, बराबर है। क्यूबॉइड का देखो बेस जो सरफेस एरिया होता है वो कैसा होता है? वो होता है रेक्टेंगुलर, बराबर है। कैसे होता है वो? Rectangular. हाँ रेक्टेंगुलर होता है। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है आपका? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये फॉर्मूला तो पता होगा ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला आपको पता है नहीं या नहीं पता है? सिंपल है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। Breadth. हाँ ये फॉर्मूला है, बराबर है। तो जो बेस सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला आपके पास आ गया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और यहाँ पर होता क्या है? सेकंडली ये देखो, ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेड्थ, बराबर। और ये हो गई आपकी हाइट। तो वॉल्यूम अगर आपको निकालना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला तो सिंपल हो गया ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसका फॉर्मूला एकदम सिंपल है। जो बेस एरिया होगा, बेस एरिया इनटू हाइट, ये सिंपल फॉर्मूला है। तो बेस एरिया आपका रेक्टेंगल का होता है, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं आपको। अगर आपको रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता है तो आपको पता है क्यूबॉइड में होता है क्या है। सभी सरफेस जो होते हैं ना, 6 सरफेस होते हैं। ये तो पता होगा ना आपको, 6 सरफेस होते हैं। Yes, sir. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला तो सबसे सिंपल ही है, हर एक फिगर के लिए सिंपल है। अगर सिलेंडर आपको वॉल्यूम, अगर आपको सिलेंडर का वॉल्यूम निकलना है तो वो भी सिंपल है। सिलेंडर में क्या होता है? डाउन साइड में सर्कल होता है, बराबर है। तो सर्कल बेस एरिया इनटू हाइट। अगर हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकलना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो उसके लिए भी तो सेम फॉर्मूला है, बेस एरिया इनटू हाइट। बेस एरिया इनटू हाइट, उसका बेस एरिया है सर्कुलर, सर्कल का एरिया। सर्कल का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। सर्कल का एरिया क्या फॉर्मूला है? पाई आर स्क्वायर और हाइट h। मतलब देखो दोनों तीनों फॉर्मूलाज का
सभी का बेस एक ही है कि बेस एरिया इंटू हाइट, जो भी बेस एरिया है उसको मल्टीप्लाई करो हाइट से, तो वॉल्यूम आपको निकल जाएगा। आया समझ में? और एक फॉर्मूला कौन सा बाकी रह गया? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो क्यूब का तो सिंपल फॉर्मूला है, उसका बेस क्या होता है? स्क्वायर। मतलब सपोज एल स्क्वायर बराबर इंटू एल, हाइट भी एल होती है, ठीक है, हाइट भी सेम, उसकी लेंथ ब्रेथ सब सेम होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? एल क्यूब। कितना सिंपल है इसका फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। आ रहा है समझ में? Yes, sir. हाँ, ये तीनों फॉर्मूलाज आपको एक ही टाइम में आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको याद रखने की जरूरत है कि बेस एरिया इंटू हाइट। आपको जो 2D फिगर्स है उनके एरिया पता होंगे तो आपको 3D फिगर का वॉल्यूम निकालने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो वॉल्यूम आपको सबको समझ में आ गया यहाँ पर? मेरे ख्याल Yes, से आपको sir. ये तीन ही वॉल्यूम है यहाँ पर आपको, कोन या फिर दूसरी फिगर का नहीं ना, स्फीयर वगैरह, वो 9th में शायद। ठीक है, अभी आपको जो सेकंड फॉर्मूला आपको याद रखने हैं वो है टोटल सरफेस एरिया। बराबर है ना? ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रहते, बराबर है ना? Yes, sir. हाँ, कौन सा फॉर्मूला याद नहीं रहता है? क्यूबॉइड का, सिलेंडर का, या फिर क्यूब का? कौन सा फॉर्मूला? Sir, cylinder. Cylinder. सिलेंडर का फॉर्मूला तो सबसे सिंपल ही है। देखो, सिलेंडर का फॉर्मूला अगर आपको याद रखना है तो रेक्टेंगल को याद रखना पड़ेगा आपको। किसको याद रखना पड़ेगा? रेक्टेंगल को याद रखना पड़ेगा। Rectangle. हाँ, ये देखो, सिलेंडर को अगर आप यहाँ पर, रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पर देखो, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये फॉर्मूला है रेक्टेंगल का। तो देखो, आपको ये जो पोर्शन होता है ना रेक्टेंगल का, एक पेपर, अगर आप इसको फोल्ड करोगे, ऐसा ऐसा फोल्ड करोगे इसको, तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा? सरकमफेरेंस हो जाएगा। ये जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा? आपका Circumference. सरकमफेरेंस हो जाएगा। बराबर है? इसको अगर आप प्रोटेक्ट करोगे तो Yes. ये जो पार्ट हो जाएगा ये सरकमफेरेंस हो जाएगा। मतलब लेंथ बिकम्स सरकमफेरेंस, एम आई राइट? लेंथ लेंथ बिकम्स सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का Circumference. फॉर्मूला तो पता है आपको, 2 पाई आर, 2 पाई आर पता है ना आपको? Yes, sir. हाँ, और ये देखो, ये जो फिगर है यहाँ पर, ये ब्रेड्थ जो है वो क्या बन जाएगी? फिर हाइट बन जाएगी। क्या बन जाएगी? हाइट। ब्रेड्थ बिकम्स हाइट। तो यहाँ पर देखो, ये फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर देखो, लेंथ की वैल्यू मैंने प्लेस किया 2 पाई आर, और ब्रेड्थ कितनी है? h। तो कितना सिंपल हो गया। ये यहाँ पर आपको ये जो मिडल में पोर्शन दिख रहा है, इस पोर्शन को क्या बोलेंगे हम? कर्व्ड सरफेस एरिया। इसको लैटरल सरफेस एरिया तो बोलेंगे नहीं। हाँ, अगर यहाँ पर एजेस होती, वर्टाइसेस और एजेस होते, तो हम इसको बोलते लैटरल सरफेस एरिया। जो भी मिडल का एरिया होता है ना, उसको हम बोलते हैं लैटरल। अगर एजेस होंगे तो लैटरल बोलेंगे, और अगर कर्व पार्ट होगा तो उसको बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया। Curved surface area. तो यहाँ पर देखो, आपको कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो मिल गया। क्या मिला आपको? वो फॉर्मूला 2 पाई आर एच। तो याद रखने की जरूरत है ही नहीं उसमें। अगर आपको रेक्टेंगल का फॉर्मूला याद है तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है। अगर आपने फिगर ड्रॉ करके भी आपने एल इंटू बी करके सॉल्व कर लिया ना, कि एल क्या होता है? एल आपका सरकमफेरेंस हो रहा है, ब्रेड्थ आपका हाइट हो रहा है। तो कितना सिंपल फॉर्मूला है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो आपको आ रहा है, और सर्कल का फॉर्मूला तो आपको पता है। सर्कल का फॉर्मूला पता है आपको, क्या है? पाई आर स्क्वायर। Pi r square. देखो, डाउन साइड में भी आपको सर्कुलर पार्ट मिल रहा है, अप साइड में भी सर्कुलर पार्ट मिल रहा है। मतलब बॉटम और टॉप का एरिया जो है, बॉटम और टॉप दोनों क्या है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला याद रखना है तो 3 अलग अलग पार्ट्स, जैसे कि टॉप सरफेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया प्लस बॉटम सरफेस एरिया, बस इन तीनों की एडिशन है। टॉप सरफेस एरिया आपका क्या है? पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया क्या है आपका? 2 पाई आर एच। और बेस सरफेस एरिया क्या है? वो भी है पाई आर स्क्वायर।
1 पाई आर स्क्वायर प्लस 1 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर ये स्क्वायर हाँ यहाँ पर ये 2 पाई आर एच। तो इसमें देखो 2 पाई आर तो कॉमन निकल रहा है दोनों में से, 2 पाई आर अगर आपने कॉमन निकल लिया तो क्या बचेगा आर प्लस एच। तो मुझे नहीं लगता इतना अगर सिंप्लीफाइड मैंने करके दिया है तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत है। फॉर्मूला आपको रटने की भी जरूरत नहीं है और कुछ रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं है, बस उसका स्ट्रक्चर आपको ध्यान में आ गया, फिनिश, कभी भूलोगे नहीं आप, है ना। आ रहा है समझ में। ये हो गया आपका सिलेंडर का। बाकी रहा आपका अभी क्यूबॉइड का। ठीक है, क्यूबॉइड का तो एकदम सिंपल है। क्यूबॉइड का मैंने आपको लास्ट टाइम ही एक्सप्लेन किया था कि क्यूबॉइड में सरफेस एरिया कितने होते हैं, कितने फेसेस होते हैं वहां पर, 6 फेसेस होते हैं ना। 6 yes sir हाँ 6 फेसेस होते हैं। तो यहाँ पर देखो ये तो सिंपल है, यहाँ पर आपके ये हो गया आपका बॉटम, यहाँ पर भी बॉटम सरफेस एरिया है और यहाँ पर भी टॉप सरफेस एरिया है, बराबर है। बॉटम सरफेस एरिया यहाँ पर भी रेक्टेंगल है, क्या है रेक्टेंगल। तो यहाँ पर भी रेक्टेंगल का सेम, यहाँ पर हो जाएगा ये लेंथ और ये ब्रेड्थ, यहाँ पर भी इनका मल्टीप्लिकेशन लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी लेंथ एंड ब्रेड्थ का मल्टीप्लिकेशन, है ना सिंपल। और यहाँ पर देखो yes ये sir हाइट है, ये हाइट है, ये ब्रेड्थ है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ब्रेड्थ इंटू हाइट, अरे समझ में। यहाँ पर भी सेम, yes sir हाँ यहाँ पर भी ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है, इनका मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर आपका ये लेंथ है, लेंथ इंटू हाइट, ये देखो ये लेंथ इंटू हाइट, ये भी लेंथ है और ये भी हाइट है, इनका मल्टीप्लिकेशन, अरे समझ में। तो कितना सिंपल है, हर एक Yes, sir. 2 टाइम्स हो रहा है, मतलब यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, यहाँ पर भी वैसे ही है, टॉप सरफेस एरिया प्लस लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल मतलब मिडल का, और यहाँ पर भी बॉटम सरफेस एरिया, यहाँ पर भी सेम है। तो टॉप सरफेस एरिया आपका फॉर्मूला है एल बी, एल इंटू डी। B लैटरल सरफेस एरिया में हर एक वैल्यूज 2 बार आ रही है ना। यहाँ पर देखो टॉप सरफेस एरिया और बॉटम सरफेस एरिया का फॉर्मूला सेम है, एल बी। और लैटरल सरफेस एरिया में देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, बी एच 2 टाइम्स आ रहा है, बी एच 2 बी एच एंड 2 एच एल, 2 एच एल। यहाँ पर देखो एल बी क्या हो जाएगा आपका 2 एल बी प्लस 2 बी एच प्लस 2 एच एल। मतलब ये फॉर्मूला तो सबसे सिंपल है याद रखने के लिए। देखो इस फॉर्मूला को अगर आपको याद रखना है ना तो 3 वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है ना, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, भूल गए, एल बी एच। तो बस इस फॉर्मूला को आपको 2 बार रीड करना है। देखो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, HL मतलब एक ही फार्मूला याद रखने की जरूरत है, उसी फार्मूला के ऊपर आप सभी फार्मूला याद रख सकते हो। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला आपका प्रॉपरली हो गया, अभी भूलना नहीं चाहिए ये फार्मूला, एकदम सिंपल फार्मूला है। वॉल्यूम का फार्मूला आपको याद हो गया, इस फार्मूला को ही आपको क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया में कैसे कन्वर्ट करोगे, टू इनसाइड द ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, आया समझ में। और यहाँ पर लैटरल सरफेस एरिया ऑफ, लैटरल सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला है, यहाँ पर सिर्फ एल बी निकल जाएगा, मतलब 2 इंटू ब्रैकेट बी एच प्लस एच एल, हो गया आपका लैटरल सरफेस एरिया, एकदम सिंपल है। टोटल सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया में सिर्फ डिफरेंस इतना ही होता है, यहाँ पर एल बी होता है, यहाँ पर एल बी नहीं होता है, समझ में। और सबसे सिंपल फॉर्मूला बताओ कौन सा है, वो है क्यूब का। वॉल्यूम का भी फॉर्मूला सिंपल है, देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब सिंपल फॉर्मूला है, बेस एरिया है स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर इंटू एल, तो ये फॉर्मूला हो गया सबसे सिंपल एल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। LQ हाँ और अभी यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसका फॉर्मूला,
टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो ये फॉर्मूला जो आपके पास है, ये देखो इस फॉर्मूला में 2 इनसाइड द ब्रैकेट L इंटू एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। हर एक सरफेस एरिया सेम होता है ना, तो एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर। या फिर हम ऐसा बोलेंगे कि स्क्वायर को जो क्यूब होता है ना, क्यूब में 6 स्क्वायर होते हैं। कितने होते हैं, 6 फेसेस सेम होती है। सो 6 इंटू मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ 1 स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 1 स्क्वायर क्या है, एल स्क्वायर। एकदम सिंपल है। नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, फेसेस होते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ 1 स्क्वायर। सबसे सिंपल फॉर्मूला ये है क्यूब का, ठीक है। और लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब अगर निकालना है तो वो सबसे सिंपल फॉर्मूला है, 4 फेसेस होते हैं। कितने फेसेस होते हैं, वॉल्स को कितने फेसेस होते हैं, 4 वॉल्स होती है ना, Yes, sir. 4 डायरेक्शन के 4 वॉल्स। ओके, मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ 1 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आ गया 4L स्क्वायर। देखो आपका अभी रिवीजन भी हो गया, सभी फॉर्मूला आपको कभी बोलोगे नहीं, आप बोलोगे क्या, मुझे नहीं लगता कि आपको रटने की No, जरूरत है, sir. कुछ भी जरूरत नहीं है, आपके सभी फॉर्मूलाज हो गए, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 तक पूरा हो गया। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ऐसा कोई बोल रहा था मुझे, किसको नहीं समझ में आया था, Sir, me assist. अस्मिता। देखो सिंपल फॉर्मूला है बेटा, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर क्यूबॉइड की हाइट गिवन नहीं है, आपको फाइंड आउट करना है। बेस एरिया गिवन है आपके पास और वॉल्यूम गिवन है। तो वॉल्यूम का तो फॉर्मूला मैंने बताया ना आपको, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। हमारा फॉर्मूला ही वैसे था ना। Yes, sir. हाँ, क्या फॉर्मूला था, बेस एरिया क्या होता है आपका, LB इंटू एच, है ना, लेंथ इंटू विड्थ। रेक्टेंगुलर होता है कि नहीं फॉर्मूला, रेक्टेंगुलर होता है ना Yes, एरिया, sir. है समझ में। पर आपको Yes. LB लिखने की जरूरत भी नहीं है, आपको सिर्फ ये लिखना है बेस एरिया इंटू हाइट। ये रिलेशन पता होना चाहिए आपको, हर एक फिगर में सेम है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया हो, है ना। तो बस 900 को 180 से डिवाइड करो, आपको मिल जाएगा हाइट। क्वेश्चन नंबर 4, क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशन। क्यूबॉइड का डायमेंशन गिवन है, देखो यहाँ पर ये लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है, हाइट गिवन है, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। तो वो कितने हो सकते हैं, तो कैसे फाइंड आउट करोगे आप, जल्दी से बताओ। देखो क्यूबॉइड में स्मॉल क्यूब्स बहुत हो सकते हैं, तो यहाँ पर सिंपल है, देखो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, एक ही फॉर्मूला में आपका आंसर आ सकता है। नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स ऑफ 6 सेंटीमीटर लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ big cuboid, that cuboid it is big na, volume of this big cuboid divided by volume of small one small cube, one small cube। तो सिंपल देखो यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, इसका फॉर्मूला है LBH, इसका फॉर्मूला है L स्क्वायर। आपके पास सब डायमेंशन है, 60 मल्टीप्लाई बाय 54 मल्टीप्लाई बाय 30। यहाँ पर आपके सब डायमेंशन है आपके पास क्यूब के, ऑल साइड्स आर इक्वल, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा, आया समझ में। इसका आंसर आएगा 450, Yes, sir. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर whose volume is 1.54 meter cube, diameter it is 140 centimeter, means radius it is how much, divided by 2, 70 centimeter।
70 centimeter. Volume, you know formula. What is the volume of cylinder? What is the formula? Base area. Pi r square h. Height. Base area, what it is? Pi r square into h. This is the formula. So here pi value you have. Radius, it is given 70 multiplied by 70. But here it is a, just wait. Here there is one difference. Here volume it is given in meter Sir, cube. the units are different. Meter cube it is given. What it is given? Meter cube. So you can convert this radius into meter. You can convert radius into meter. Okay. You can convert. How you can convert? Divide by 100. Dividing by 100. Zero 0.7 meter. 0.70 means we can say 0.7 meter, right? Yes, sir. So 0.7 means 7 upon 10 we can say. Okay, 7 upon 10 into 7 upon 10 into height not given. So here h, and here volume it is given 1.54. 1.54. So we can say 154 upon 100. Okay. So when we simplify, h is equal to h is equal to so these values will be multiplied 154 multiplied by 7 multiplied by 10 multiplied by 10, downside 100 multiplied by 22 multiplied by 7 multiplied by 7. Solve this, you will get value of height 100 centimeters, sir. 100 centimeter. No, Yes. not centimeter, not now. You will get 1, I think. You will get 1. 7 get cancelled. These 100 get cancelled. Okay, 7 1 are 7. 7 2 are 14. 7 2 are 14. 22 get cancelled. So you here you get 1 meter. Height you get 1 meter means 100 centimeter. Understand? Yes, sir. The last question. Last not. Okay, in this question, a milk tank is in the form of cylinder. Okay, whose radius is? सिलेंडर के फॉर्म में उसका रेडियस कितना है यहाँ पर 1.5 मीटर एंड लेंथ इज 7 मीटर. लेंथ मतलब यहाँ पर हाइट होगा, है ना? लेंथ मीन्स व्हाट? हाइट. Length means here it is given height of cylinder. It is 7 meter. So volumes formula you know, base area pi r square into h. So all the units are same, meter. So no problem. Radius 1.5, so 15 upon 10, 15 upon 10, and height it is 7. So you can just get answer. Multiply these all values. 49.5. How much? 49.5. 49.5 meter square. And you have to convert this now into the liter you want to convert. Okay. Sir, meter cube, right? Sorry, cube. Meter cube. It is meter cube. So here we should know that we have to convert it into the liter. Liter. Okay. So what to do? What we have to do? Sir, 49.5 into 1000. Very good. 49.5 into 1000, because 1 meter cube is equal to 1 liter. Sir, 1000 liter. 1000, sorry, 1000.
1 0 1 0 get cancelled, 4 9 5 and these 2 zeros, that much liter of water. Okay, understand? Yes, sir. Yes, sir. Exercise number 8 point, no 11 point, what is this 4 now, question number 11.4. Okay, now tell me, remaining questions, are you able to solve? शायद 2 ही क्वेश्चन बाकी. Sir, we will solve them. ओके, आप बताओ मुझे अभी इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करोगे आप? क्वेश्चन नंबर 7 कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ पर आपको है ना जो क्यूब की एज है आपको एक्स कंसिडर करना है. आपको मैं हिंट देता हूँ, है ना, एज आपको एक्स कंसिडर करना है और सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को. तो वो एक्स के फॉर्मेट में आएगा. जो भी कंडीशन दिया है ना उस कंडीशन के हिसाब से आपको सॉल्व करना है ये क्वेश्चन. और सेकंड क्वेश्चन जो है, जो आपका ये क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, इसमें वाटर इज पोरिंग इनटू क्यूबॉइडल रिजर्वायर दिया है. तो ये तो सिंपल है. यहाँ पर इस क्वेश्चन में कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर गिवन है, तो वो है 108 मीटर क्यूब. तो यहाँ पर आपको इसको कन्वर्ट करना है लीटर में. तो 108 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, है ना, तब वो लीटर में कन्वर्ट होगा. बराबर ना? अरे समझ में. और यहाँ पर Yes, रेट ऑफ पोरिंग गिवन है 60 लीटर पर लीटर दिया है, मतलब लीटर के फॉर्मेट में है ना. अरे समझ में 60 लीटर पर. yes, sir. तो लीटर को आपको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो 1 आवर के लिए आपको पता है 1 आवर मतलब 60 मिनट. तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 करना पड़ेगा आपको, तो वो हो जाएगा 3600 लीटर पर आवर. आ रहा समझ में? तो जो भी आपका रिजर्वायर का कैपेसिटी है उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा 3600 से, तो आपको मिलेगा 30 आवर्स. Yes, sir. दोनों क्वेश्चन सिंपल है. कल हम डिस्कस करेंगे बाकी के क्वेश्चंस, मतलब बाकी कोई चैप्टर बाकी होगा तो. ठीक है, मैं Yes. आपको और एक दूसरी लिंक देता हूँ थोड़ा डिस्कस करने के लिए. इस मीटिंग को मैं अभी एंड कर रहा हूँ. दूसरी मीटिंग आपको थोड़ा 5 मिनट डिस्कस करने के लिए भेज रहा हूँ. Yes.